میری زندگی میں سب سے عجیب واقعہ وہی تھا جس نے میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے، اور میں حیرت میں ڈوبی یہی سوچتی رہی کہ اماں ایسے کیسے کر سکتی ہیں اور کیوں؟ جب وہ حقیقت مجھ پر کھلی تھی تو میں کہیں کی نہ رہی، اور آج بھی وہ سب یاد کرتی ہوں تو مجھے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوتی ہے، اور پھر مجھے اماں یاد آتی ہے کہ آخر کیوں اماں نے وہ سب کیا تھا۔ میرا نام شائستہ ہے اور میرا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جس کی ہر بات ہی ایک راز تھی۔ میں نے ایک پرانی حویلی میں آنکھ کھولی تھی جو میرے دادا ابا کی آبائی حویلی تھی اور میرے ابا کی وراثت میں ان کو ملی تھی۔ میں نے اپنے بچپن سے ہی اپنے گھر اور خاندان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سنی تھی، مگر کس بات میں کتنی سچائی تھی اس کا اندازہ مجھے جوان ہونے پر بھی ٹھیک سے نہیں ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک ابا زندہ تھے تب تک ہمارے حالات بھی اچھے تھے۔ ابا گاؤں کے ایک ٹھیکیدار کے ہاں منشی کا کام کرتے تھے اور کم تنخواہ میں بھی اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ابا کی پہلے اچھی خاصی زمینیں ہوا کرتی تھیں جن میں سے آدھی زمین پر گاؤں کے زمیندار نے قبضہ کر لیا تھا۔ ابا بتاتے تھے کہ جب دادا کو فالج ہوا تھا تب زمیندار نے دھوکے سے زمینوں پر قبضہ کیا تھا۔ چونکہ میرے ابا پڑھے لکھے نہیں تھے اسی لیے زمین کے کاغذات پر خود ہی سائن کر دیے، کیونکہ زمیندار نے دادا کے علاج کے لیے ابا کو پیسہ دیا تھا جو ابا نے کچھ زمینیں گروی رکھ کر لیا تھا۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ گروی کے جس معاہدے پر ابا نے دستخط کیے تھے وہ دراصل زمیندار کی ایک چال تھی۔ اسی طرح اس نے ابا کے حصے کی آدھی سے زیادہ زمینیں ہتھیا لی تھی، اور ابا تو ویسے ہی دادا کی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ابا کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میری اماں میرے ابا کی دور کی کزن ہی تھی، اور پورے خاندان میں اماں کی خوبصورتی کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ اماں بھی پڑھی لکھی نہ تھی، کیونکہ اس وقت گاؤں کے کسی خاندان میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ ان کو ایک شادی میں ابا نے دیکھا تھا اور دیوانے ہو گئے تھے۔ پھر ابا کا رشتہ لے کر جب دادا اماں کے گھر گئے تب اماں کے گھر والوں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ دادا کی زمین جائیداد ہی اتنی تھی کہ کوئی بھی ان کے بیٹے سے رشتہ داری کی خواہش کر سکتا تھا۔ اس طرح اماں بیاہ کر اس حویلی میں آئی تھی۔ ابا اماں کی شادی کے 2-3 ماہ بعد ہی دادا کو فالج ہوا تھا اور آدھی سے زیادہ زمین ابا کے ہاتھ سے نکل گئی، اور پھر دادا 6 ماہ زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ جب اماں بیاہ کر حویلی میں آئی تھی تب اس حویلی میں صرف ابا اور دادا ہی رہتے تھے۔ دادی کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا جب ابا چھوٹے سے تھے۔ ابا کو دادا نے خود ہی اکیلے پالا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے میرے بچپن میں اماں کی زبانی ہی پتہ چلی تھی۔ اماں نے ہی بتایا تھا کہ جب زمینوں کا دھوکہ ہوا تب ابا نے باقی کی زمینوں پر کام جاری رکھا اور دادا کے جانے کے بعد دن رات محنت کی۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی، اناج سے لے کر زیورات تک گھر میں موجود تھے، اور ابا نے کبھی بھی اماں کو تنگی کا سامنا نہیں کرنے دیا تھا۔ ابا جو کماتے وہ سب اماں کے ہاتھ میں رکھتے، کیونکہ اماں اپنے مزاج اور مرضی کی مالکہ تھی۔ اماں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں اتنی عیش بھری زندگی تو نہیں گزاری تھی، مگر وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، اور پھر جیسے جیسے جوان ہوتی گئیں اپنے حسن کی وجہ سے کسی حد تک مغرور بھی ہو گئی۔ اماں کسی سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اور یہی سب اماں نے شادی کے بعد بھی جاری رکھا۔ ابا کی ٹھنڈی طبیعت اور دھیمے مزاج کے سامنے اماں نے صرف اپنی چلائی۔ خاندان والے کہتے تھے کہ اماں کی وجہ سے ہی دادا کو فالج ہوا تھا اور وہ 6 مہینے میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ ایسی باتیں کیوں بناتے ہیں۔ آخر میری اماں نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ پر میری ہمت کبھی نہیں ہوتی تھی کہ اماں سے اس بارے میں سوال جواب کرتی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کا روب اور دبدبہ ہی دیکھا تھا۔ ان کا غصہ بھی بہت شدید ہوا کرتا تھا۔ بات بات پر ابا سے لڑائی جھگڑا اور عجیب عجیب سے تانے وہ ابا کو دیا کرتی تھی، اور میرا چھوٹا سا دل و دماغ گھر کے ایسے ماحول کی وجہ سے سہما سہما رہتا تھا۔ میں کبھی بھی اماں کے مزاج اور باتوں کے مطلب کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابا سے زیادہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ابا میری ضرورتوں کا خیال رکھتے، مجھ سے باتیں کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میرا بچپن ابا سے کہانیاں سنتے ہوئے گزرا تھا۔ ابا مجھے بہت ساری کہانیاں سناتے تھے، اور کہانی سناتے سناتے جانے کن خیالوں میں کھو جایا کرتے تھے۔ میں گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھنے جاتی تھی۔ ابا مجھے خود چھوڑنے جایا کرتے تھے اور واپس لینے بھی خود ہی جاتے تھے۔ پڑھنے میں میرا دل نہیں لگتا تھا، شاید اسی کی وجہ گھر کا ماحول تھا۔ ہر وقت اماں ابا کے لڑائی جھگڑے میرے ننھے سے دل پر ضربیں لگاتے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میرے اماں ابا بھی سکون سے بنا لڑائی کے رہیں اور میرے ساتھ مل کر ہنسیں اور کھیلیں جیسے میری سہیلیوں کے اماں ابا تھے، مگر میری حسرت ہمیشہ حسرت ہی رہی۔ ایک دن بہت عجیب سی بات ہوئی۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی اور بہت سی باتوں کو سمجھنے لگ گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ابا اور اماں لڑ رہے تھے، بلکہ ہمیشہ کی طرح اماں ہی ابا سے بلا وجہ لڑ رہی تھی کہ لڑتے لڑتے اماں نے ابا سے کہا کہ میں نے ہمیشہ تمہارے گھر کا گند سمیٹا ہے۔ یہ بات سن کر ابا کو بھی غصہ آ گیا، اور ابا نے پہلی بار اماں پر ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے کہ تم نے صرف ہمارے گھر کو برباد ہی کیا ہے، جب سے آئی ہو اس گھر میں صرف بربادی ہی ہوئی ہے۔
ये कहकर अब्बा बाहर चले गए और फिर अपने कदमों पर ना लौटे। अब्बा का उस झगड़े के बाद ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनको फालिज का अटैक हो गया। अब्बा के बिस्तर से लगे हमारे तो हालात ही नीचे लगते रहे। ज़मीनों पर अब्बा जो काम करते थे वो तो अब बंद हो चुका था। पहले अम्मा ने किसी जानने वाले से बात करके ज़मीनों की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, लेकिन आमदनी पहले जैसी ना रही थी। अब्बा जो हज़ारों रुपए एक हफ्ते के कमाते थे वो हज़ारों से सैकड़ों में बदल गए। एक अब्बा के इलाज में बहुत खर्चा हो जाता था और दूसरा अम्मा की आराम परस्ती और शौकीन तबीयत ने वही रविश इख्तियार कर रखी थी जो अब्बा की कमाई से अम्मा को आदत पड़ी हुई थी। अब भी पहले की तरह हवेली का काम करने 2 मुलाजमा आती थी और अम्मा को तो आदत थी, वो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। इसीलिए अब्बा की बीमारी के बाद भी नौकरानियों को काम पर लगाए रखा, मगर ज़मीनों से आने वाला खर्चा कहाँ पूरा पड़ सकता था। अम्मा एक दिन में 2 टाइम ताज़ा खाना पकवाती थी और फल गोश्त वाफिर मिकदार में आया करता था, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। अब कमाने वाला बिस्तर से लग चुका था। अब्बा के जिस्म का दायां हिस्सा मफलूज हुआ था। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि अब्बा इलाज और देखभाल से ठीक हो सकते हैं, इसलिए अम्मा ने अब्बा का इलाज जारी रखा और बाकायदा तौर पर अब्बा की फिजियोथेरेपी के लिए शहर के अस्पताल से एक आदमी आया करता था। अब्बा की दवाएं भी बहुत महंगी थी। इलाज के खर्चे के लिए आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें बेचना शुरू कर दी, मगर अब्बा इस काबिल हो गए कि लाठी के सहारे की मदद से चलने फिरने लग गए थे। मगर अब वो ज़मीनों पर काम नहीं कर सकते थे और ज़मीन का सिर्फ एक टुकड़ा बचा था जो अम्मा की ज़िद पर अब्बा ने बेच दिया। अम्मा को अपने लिए नया जेवर बनवाना था और अम्मा का कहना था कि जब सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं तो एक टुकड़ा रखकर क्या करोगे, वही जेवर कल बेटी के काम आएगा। इसी तरह सारी ज़मीन ख़त्म हो गई, मगर ज़िंदगी की गाड़ी तो चलानी थी। अब्बा ने ठेकेदार के यहाँ मुंशी की नौकरी शुरू कर दी। अब्बा लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर हिसाब किताब में बड़े माहिर थे। ठेकेदार को अब्बा की ईमानदारी पर यकीन था, इसलिए उसने अब्बा को न सिर्फ नौकरी दी बल्कि एक लड़का भी साथ काम पर रख दिया जो लिखने पढ़ने का काम करता और अब्बा की निगरानी में ठेकेदार की ज़मीनों का सारा हिसाब किताब होता था। यूं घर के खर्चों की गाड़ी चलती रही। पहले जैसी ऐश व इशरत न रही थी, मगर घर का चूल्हा आसानी से जल जाता था और अब्बा के सुकून के लिए यही काफ़ी था। मैं 14 बरस की हो चुकी थी और ये मेरी उम्र का बोझ सा था जो मैंने अपने आसपास कुछ न कुछ नोट करना शुरू किया था। पहले तो बस अम्मा अब्बा के झगड़े और फिर अब्बा की बीमारी ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा था कि किसी चीज़ पर तवज्जो देती, मगर अब चूंकि मैं बड़ी और समझदार होती जा रही थी, इसीलिए सोचने समझने के साथ साथ मुशाहिदे की सलाहियत में भी इजाफा हुआ था। हमारी हवेली के 2 हिस्से थे। हम आगे वाले हिस्से में मुकीम थे और हवेली का पिछला हिस्सा हमारे इस्तेमाल में नहीं था। क्योंकि हवेली बहुत पुरानी थी, इसीलिए मैं हवेली के पिछले हिस्से में जाने से हमेशा डरती थी। मुझे नहीं याद पड़ता था कि मैंने कभी अपनी 14 साल की ज़िंदगी में हवेली के पिछले हिस्से में कदम भी रखा हो, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि हवेली के पीछे वाले हिस्से के बिल्कुल शुरू में ही सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो हवेली की तवील छत पर जाकर खुलती थी। मैं कभी छत पर भी नहीं गई थी क्योंकि अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि मैं पिछले हिस्से और छत पर ना जाऊँ। मैंने कभी अब्बा को भी इस तरफ जाते हुए नहीं देखा था, बल्कि जब भी अब्बा उस तरफ जाने की कोशिश करते उसी दिन अम्मा और अब्बा की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। अम्मा हमेशा अब्बा को दबा कर रखती थी, कभी अब्बा की नहीं चलती थी और मुझे तो यही लगता था कि मेरे अब्बा अपनी शरीफाना तबीयत और मिजाज की वजह से अम्मा की तुनक मिजाजी और ऐसी गुस्सीली फितरत को बर्दाश्त करते थे, क्योंकि अगर वो भी अम्मा जैसे हो जाते तो शायद ही उनका घर बसता। मुझे याद है कि जब मैं 5वीं क्लास में थी और एक दिन मैं दालान में बैठी स्कूल का काम कर रही थी तो मैंने अम्मा को हवेली के पिछले हिस्से में जाते हुए देखा। वो पहली बार देखा था और फिर अक्सर मुझे अम्मा पीछे की जानिब जाती हुई दिखाई देती थी। अम्मा के हाथ में खाने की ट्रे होती थी जो वो पीछे हवेली में कहीं रखाती और फिर खाली ट्रे उठा लाती थी। पहले तो मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी, मगर जब मैंने कई मरतबा ऐसे देखा तो एक दिन अम्मा से पूछ लिया। अम्मा ने कहा कि वो रोटी और पानी वगैरह पीछे हवेली में परिंदों के लिए रखती हैं। और अब इतने साल गुजर जाने के बाद जब अब्बा भी मुंशी का काम शुरू किया था तब भी अम्मा की यही रूटीन थी। जिंदगी खामोशी से आगे बढ़ रही थी। अब हवेली में काम करने के लिए बस एक काम वाली आती थी, क्योंकि अब्बा की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो घर के खर्चों के साथ साथ काम वाली की तनख्वाह का भी इंतज़ाम कर सकते। इसलिए अम्मा को मजबूरन अब्बा की बात माननी पड़ी। मैं 5वीं पास करके घर बैठ गई थी। एक तो गांव में और स्कूल नहीं था, दूसरा अम्मा का कहना था कि इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो मेरी पढ़ाई में ज़ाया किए जाएं, बल्कि उनके मुताबिक मुझे अब घरदारी सीखनी चाहिए थी ताकि मेरी शादी के बाद मुझे तंगी ना हो घर संभालने में। और मैं भी अब्बा की तरह अम्मा के फैसलों के सामने मजबूर थी। ना अब्बा बोलते थे और ना मुझ में बोलने की हिम्मत थी। हालात से समझौता करना मैंने अब्बा से ही सीखा था और अब तो मुझे भी अब्बा की तरह सादा ज़िंदगी गुजारना अच्छा लगता था। मैं और अब्बा एक दूसरे से दिल की बात कर लेते थे, मगर मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अब्बा के दिल में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो उनको अंदर ही अंदर खा रहा था, और अब्बा ने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया था।
और फिर ऐसा हुआ कि अचानक मेरे अब्बा मुझे छोड़कर चले गए। ठेकेदार के पास से काम करके वापस लौट रहे थे जब अचानक से दिल की हरकत बंद होने की वजह से रास्ते में ही गिर गए और गांव वाले अब्बा की मैयत ही घर लेकर आए। उस शाम हवेली में सोग का समा था। अम्मा जो सारी ज़िंदगी अब्बा से लड़ती रही थी, उस दिन चुपचाप बैठी थी, बस रो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अम्मा की ज़िंदगी थी ही अब्बा से, बेशक लड़ झगड़ कर या जैसे भी, मगर अब्बा ही के दम से सब कुछ था। और अब तो हम दोनों माँ बेटी के सिवा इस हवेली में कोई और था ना हम दोनों की ज़िंदगी में। अब्बा के जाने के बाद अम्मा ने खामोशी की अनदेखी चादर ओढ़ ली थी। वो चुपचाप काम भी करने लग गई थी और अपने आप को भी संभाल लिया। मैं गुमसुम सी अम्मा को देखती रहती और अम्मा के साथ काम काज के दौरान बहाने से अम्मा से बात करने की कोशिश करती, मगर अम्मा सिवाय हाँ हूँ के कोई बात नहीं करती थी। अम्मा ने काम वाली भी अब हटा दी थी। वो खुद ही हवेली के सारे काम करने लग गई थी और हमेशा की तरह रोज़ शाम को खाने की ट्रे ले जाकर हवेली के पिछले हिस्से में बनी सीढ़ियों पर रख देती और 1-1.5 घंटे बाद उठा लाती। घर का खर्चा भी अम्मा की जमा पूंजी से चल रहा था और कुछ मदद ठेकेदार हर महीने कर देता। घर में दाल सब्जी पक रही थी, मगर अम्मा के मिजाज में भी तब्दीली आती जा रही थी। अब वो पहले की तरह जेवर पहन कर नहीं रखती थी और अब तो कोई ऐसा था भी नहीं जिससे लड़ झगड़ कर अपना दिल बहलाती। मैंने अक्सर अम्मा को चुपके चुपके रोते हुए देखा था और फिर एक रात ऐसा हुआ जो मुझे बहुत बाद में समझ आया। अब्बा के इंतकाल को 4 महीने गुजर गए थे और उस दिन अम्मा को बहुत तेज़ बुखार था। रात को अम्मा को दवा दी और मैं सो गई। रात अचानक सोते हुए मेरी आँख खुली तो अम्मा कमरे में नहीं थी। मैं परेशान हो गई कि इतनी रात को तबीयत खराब होने के बावजूद अम्मा कहाँ चली गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और जाकर बाहर देखा तो अम्मा नज़र नहीं आई। वो दालान में थी ना आंगन में, और दूसरे कमरों की लाइट्स भी बंद थी। मैं बहुत परेशान हो गई कि इस वक्त अम्मा कहाँ जा सकती थी। मैं पहले तो दालान में बिछे तख्त पर बैठ गई, मगर फिर मुझे डर लगने लग गया तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और अम्मा का इंतज़ार करने लगी। कोई आधे घंटे बाद अम्मा कमरे में आई तो अम्मा की आंखों से लग रहा था कि वो रोई थी। अम्मा की तबीयत बहुत नाढाल सी थी। मैंने अम्मा को जल्दी से पानी पिलाया और माथे पर हाथ रखकर देखा तो अब भी बुखार में तप रही थी। अम्मा बहुत कमज़ोर और दुखी लग रही थी। मैंने कभी ज़िंदगी में अम्मा को ऐसे नहीं देखा था। मुझे अम्मा को देख देख कर दुख हो रहा था, रोना आ रहा था। मैंने अम्मा से पूछा कि वो कहाँ गई थी तो अम्मा ने कुछ नहीं बताया और मुझे सोने का कहकर खुद भी चादर ओढ़ कर लेट गई। मैं भी खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई। वो मेरी और अम्मा की एक साथ आखिरी रात थी। सुबह मैं जब उठी तो अम्मा वैसे ही लेटी हुई थी। मैंने अम्मा के चेहरे से चादर हटाई और अम्मा को आवाज़ें दी, मगर अम्मा का बेहिस्सो हरकत वजूद मेरे दिल को दहला रहा था। अम्मा भी अब्बा की तरह मुझे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ गई थी। मुझ पर यह तीसरी क़यामत थी। पहले दादा, फिर मेरे प्यारे अब्बा और अब अम्मा भी चली गई थी। मैं तो रो रो कर पागल हो रही थी। हवेली में गांव वाले जमा थे, उन्होंने ही मुझे संभाला और अम्मा की आखिरी रसूमात अदा की। अम्मा के जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी। पहले तो कुछ दिन आस पड़ोस की औरतें रोज़ आ जाया करती थी, मगर फिर सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए और दिन में एक बस चक्कर पड़ोस वाली खाला लगाती रही। वो मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझे शादी का कहती, मगर मेरी उम्र 16-17 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र में अपनी शादी का फ़ैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने खाला से कह दिया कि जैसे उनको बेहतर लगे वो मेरे लिए कर सकती हैं। मैं जिन हालात में थी बिल्कुल अकेली, ऐसे में अकेले ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं था और इतनी बड़ी हवेली में रहना वैसे भी मेरे लिए किसी अजाब से कम न था। अम्मा के इंतकाल को 1 महीना गुजरा तो हालात बदतर हो गए। अब तो पड़ोस वाली खाला ही मेरे लिए खाना लेकर आती और कुछ देर मेरे पास बैठकर चली जाती और मैं हवेली में अकेली रहती, मगर मुझे बहुत डर लगता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैं दोपहर के वक्त टहल रही थी कि यूं ही हवेली के पिछले वाले हिस्से की तरफ चली गई। मुझे अचानक याद आया कि अम्मा रोज़ ट्रे में खाना और पानी रखकर सीढ़ियों के नीचे रखा करती थी, मगर मैंने तो एक दिन भी ऐसा नहीं किया था। अम्मा का खाना खाने वाले परिंदे भी उदास हो गए होंगे। यही सोचकर मैं वहाँ गई तो मेरी नज़र सीढ़ियों के पास पड़ी एक चमकदार चीज़ पर पड़ी। जब मैंने पास जाकर उठा कर देखा तो वो सोने की एक बाली थी जिसमें लगा नगीना धूप की वजह से चमक रहा था। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये सोने की बाली किसकी थी और यहाँ कैसे आई। अम्मा के कानों में कभी मैंने ऐसी बाली नहीं देखी थी। वो मैंने उठा ली और पड़ोस वाली खाला को वो बाली दी कि अम्मा की है, इसे बेचकर पैसे ला दें ताकि मैं कुछ खर्चा पानी का इंतज़ाम कर सकूं। खाला ने वो बाली बेची और कुछ चीज़ें मुझे लाकर दे दी। मैंने उस दिन घर में ही खाना पकाया और पेट भर के खाया। अगले दिन मैंने खाना बनाकर ट्रे में रखा और सीढ़ियों के नीचे रखकर फटाफट आ गई, मगर जब ट्रे उठाने गई तो वहाँ सोने की एक चेन रखी थी। मैं वो भी उठा लाई और खाला को देकर बेचने का कहा और खाने पीने का ढेर सामान मंगवा लिया।
मैं हैरान भी थी, मगर मुझे ये तसल्ली थी कि कम से कम अब मैं अपने घर में बैठी खा तो रही थी। अगले दिन मैंने फिर ट्रे में खाना रखा और सीढ़ियों के नीचे रखा है। मैं डर के मारे आगे नहीं जाती थी और ना वहाँ रुकती थी। मुझे लगता था कि बिल्ली वो खाना खा जाती है, क्योंकि ट्रे में कोई खाना बचा हुआ नहीं होता था। जब मैं ट्रे उठाने गई तो उस दिन वहाँ सोने का एक कंगन रखा हुआ था। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि रोज़ इस जगह पर सोने की कोई ना कोई चीज़ कैसे आ जाती थी। उस वक्त अभी शाम का अंधेरा नहीं फैला था। मैंने आगे होकर सीढ़ियों के नीचे देखा तो मेरी हैरत और भी बढ़ गई, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे आगे की तरफ एक छोटा दरवाज़ा बना हुआ था, जिसमें से एक बंदा आराम से गुजर सकता था। मैं डर भी रही थी, मगर उस दिन जाने मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को हाथ से धक्का लगाया तो वो खुल गया। वहाँ सीढ़ियाँ थीं जो नीचे की तरफ जा रही थी और नीचे से लाइट भी जलती हुई महसूस हो रही थी। मैं डरते डरते सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतर रही थी मुझे अजीब सी बदबू महसूस होने लगी और फिर मेरे सर पर बिजली गिर पड़ी जब मैंने वहाँ नीचे तहखाने में एक औरत को बैठे हुए देखा। वो कौन थी और यहाँ कैसे आई थी? इससे पहले कि मैं डर के मारे चीख मारती थी, वो औरत मुझे देखकर खड़ी हो गई और मुस्कुराने लग गई। मैं वहाँ से भाग जाती, मगर उसने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दी। उसने कहा कि शाइस्ता हो ना तुम? अपना नाम सुनकर मैं वहीं गुमसुम सी खड़ी रह गई। उस औरत ने मेरे पास आना चाहा, मगर मैं 2 कदम पीछे हट गई। उसने कहा कि बेटी डरो मत, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारी सगी पुप्पो हूँ। ये अल्फाज थे कि हथौड़े जो मेरी समात पर बरस रहे थे। वो क्या बोल रही थी? कौन पुप्पो और यहाँ क्यों थी? मैं सवाल करना चाहती थी मगर बोल नहीं पा रही थी। मेरी कशमकश देखकर उस औरत ने मुझे दोबारा मुखातिब किया तो मैंने उसे गौर से देखा। वो 35-40 साल की औरत थी, बहुत कमज़ोर और नढाल सी। उसके बाल गंदे और कपड़े भी बहुत पुराने से थे। ऐसे लगता था जैसे कई साल से वो इसी हालत में पड़ी है। तहखाने पर नज़र दौड़ाई तो एक पलंग बिछा हुआ था, साथ ही ज़मीन पर एक चटाई थी। करीब ही एक टूटा फूटा बक्सा रखा हुआ था। एक तरफ पानी का मटका रखा था और एक दीवार में दरवाज़ा लगा हुआ था। शायद वो गुसल खाना था। मैं अभी चीज़ों का जायज़ा ले रही थी कि उस औरत ने बड़े प्यार से मुझे पुकारा। मैं खुद ब खुद उसके पास चली गई। उसने मेरा हाथ थामा और पलंग पर बिठा लिया। मुझे कहने लगी कि वो सालों से यही रहती है, क्योंकि मेरी माँ यानी उसकी भाभी ने उसे यहाँ रखा था ताकि मेरी पुप्पो का ब्याह करके जायदाद में से हिस्सा न देना पड़े। और पुप्पो के पास दादी का बहुत सारा जेवर था जो अम्मा लेना चाहती थी, मगर पुप्पो ने अम्मा की बात न मानी और जेवर अम्मा के हवाले नहीं किया। तो अम्मा ने ज़ोर ज़बरदस्ती पुप्पो को तहखाने में छोड़ दिया और अब्बा को कभी उनकी बहन की मदद नहीं करने दी। पुप्पो की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और पुप्पो भी रो रही थी। रोते रोते उनकी हिचकियाँ बंध गई। फिर कहने लगी कि तुम्हारी अम्मा रोज़ मेरे लिए ही खाने की ट्रे रखती थी, जिसे मैं उठा लाती और खाना खाकर वापस रख देती। और मरने से एक रात पहले वो मुझसे माफ़ी मांगने आई थी। उस रात भाभी बहुत रोई और माफ़ियाँ मांगती रही। मैंने भाभी को माफ़ कर दिया था और मुझे अंदाज़ा था कि तुम्हारे पास खर्चे के पैसे नहीं होंगे, इसीलिए रोज़ सोने की कोई ना कोई चीज़ ऊपर रखाती थी। ये कहकर पुप्पो ने बक्सा खोला और दिखाया। वाकई पुप्पो के पास बहुत जेवरात थे। मैं पुप्पो को सहारा देकर ऊपर ले गई और उनको खाना खिलाया, नहला धुलाकर कपड़े बदलवाए और खुद उनके बालों में कंघी की। साथ साथ उनसे बहुत सारी बातें करती रही। कभी हम रोते कभी हंसते रहे। मुझे अम्मा के पुप्पो के साथ इस रवैये पर बेहद अफसोस हुआ। मेरी माँ इतनी संगदिल कैसे हो सकती थी? इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, मगर अम्मा ने सारी हदें पार कर दी थी। मेरी पुप्पो की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अम्मा के किए का खमियाजा कैसे भरूं। कुछ दिन में पुप्पो की हालत बेहतर होने लगी थी। मैंने पड़ोस वाली खाला से कहलवाकर हवेली का एक हिस्सा किराए पर दे दिया और पिछला हिस्सा बेच दिया। एक हिस्से में पुप्पो के साथ रहने लगी। किराए से आने वाली आमदनी से हमारा गुजर बसर होने लगा था। कुछ अर्से बाद पुप्पो ने मेरी शादी तय कर दी। जो रिश्ता पड़ोस वाली खाला ने दिखाया था वो पुप्पो को पसंद आया था। मैंने शादी के लिए यही शर्त रखी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी मैं अपनी पुप्पो को अपने पास ही रखूंगी। आज मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका है और मैं पुप्पो के साथ ही रहती हूँ। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, वो भी पुप्पो का बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए नफरत नहीं, मगर जब भी ये सब सोचती हूँ कि पुप्पो की ज़िंदगी मेरी माँ की वजह से बर्बाद हो गई। मैं उनको बिल्कुल अपनी माँ ही समझती हूँ और उनकी खिदमत करती हूँ। अब उनकी सेहत भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इंसान क्यों इतना खुदगर्ज और मफाद परस्त हो जाता है कि इंसानियत की तजलील कर देता है और भूल जाता है कि दुनिया मकाफात अमल है। वो तो शायद मेरे अब्बा की नेक तबीयत थी कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था, वरना मेरी माँ का किया मेरे सामने आ जाता तो मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती।